یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. جمعرات 6 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں شٹ ڈاؤن میئر کے انتخابات میں شکست کی بڑی وجہ بنا. The senators, the Democrats are, again, they're kamikazes. The Democrats are not going to approve them. Blue slips are a disaster. ٹرمپ کے جوہری تجربوں کے اعلان پر روس کا رد عمل. پیوتن کو نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تیاری کا مشورہ. Trump recently literally declared that the U.S. is resuming nuclear weapons testing. Members of Parliament are asking questions and are generally concerned about the situation because it's clear where this could lead the world as a whole. افغانستان اور پاکستان میں امن مذاکرات کا تیسرا دور. طالبان کا وفد استنبول پہنچ گیا. فلپائن میں طوفان کلمیگی سے 114 ہلاکتیں. صدر نے ملک کو آفت زدہ قرار دے دیا. Unang-una sa response natin sa Typhoon Tino, mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu. Actually, جانیے ماحولیاتی نظام کا توازن سیلابوں سے کیسے متاثر ہوتا ہے. سیلاب کا پانی جب تباہی مچاتا ہے، بہت بڑے پیمانے پر گھر تباہ ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں. ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، وہ نقصان ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہی سیلاب کا پانی ایک اور دنیا کے اندر بہت تباہی مچاتا ہے جسے ہم بے خبر ہوتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے. اور وہ دنیا ہے ان انورٹیبریٹس کی. ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی حملوں کے 80 سال مکمل، لیکن زخم ابھی تک تازہ. 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 پر امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا. 3 دن بعد اس نے دوسرا بم ناگاساکی پر گرایا. اور کھیل کی خبروں میں جانیے کہ پاکستانی بلے باز ڈاٹ بال کے چنگل میں کیسے پھنسے. اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹرز کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس اقتدار میں آتے ہیں تو یہ بہت خراب صورتحال ہوگی. ٹرمپ کے مطابق میئر کا انتخاب جمہوری تھا، تاہم یہ ریپبلکنز کے لیے قطعاً اچھا نہیں رہا. واضح رہے کہ امریکی شہر نیو یارک میں میئر کے انتخاب میں ڈیموکریٹک امیدوار زوران ممدانی پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے ہیں. 34 سالہ زوران ممدانی کی جیت کو ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، جس کی دوسری مدت صدارت کے آغاز سے اب تک یہ سب سے اہم انتخاب ہیں. اپنی گفتگو میں صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو حکومتی شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ امریکہ میں شٹ ڈاؤن میئر کے انتخابات میں شکست کی بڑی وجہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ 1 اکتوبر کو شروع ہونے والا شٹ ڈاؤن امریکی تاریخ کا سب سے طویل ترین شٹ ڈاؤن ہے. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سینٹ میں قدامت پسند ڈیموکریٹ اراکین نے حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے میں صفر دلچسپی ظاہر کی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس طویل ترین شٹ ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم ایسی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. The senators, the Democrats are, again, they're kamikazes. The Democrats are not going to approve them. Blue slips are a disaster. So the only people I can get approved are Democrats. I was told that by the Democrats. We'll only approve Democrats. I said, really, is that right? Not going to work that way. Not going to work that way with me. But the blue slips are a total disaster. I have 10 people right now that are doing a phenomenal job, and they will be out of office pretty soon. They've got another 2-3 weeks, a couple of them, and then they're going to have to leave. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیوکلیئر تجربات دوبارہ شروع کرنے کے اعلان کے بعد روسی وزیر دفاع آندرے بیلوسوف نے صدر ولادیمیر پیوتن کو مشورہ دیا ہے کہ ماسکو بھی جوہری ٹیسٹنگ کی تیاری فوری طور پر شروع کر دے. روسی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدوں سے دستبردار ہو رہا ہے، نیا سینٹینل بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے اور مستقبل میں تجربے دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے.
उनके मुताबिक रूस सेंट्रल टेस्ट साइट के जरिए मुख्तसर मुद्दत में तजर्बे दोबारा शुरू करने की सलाहियत रखता है। सदर पुतिन ने वजारत खारिजा, वजारत दिफा, स्पेशल फोर्सेस और मुतालिका सिविलियन इदारों को इस मामले पर तफसीली मालूमात जमा करने और सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। Trump recently literally declared that the U.S. is resuming nuclear weapons testing. Members of Parliament are asking questions and are generally concerned about the situation because it's clear where this could lead the world as a whole. Therefore, based on what you said 2 years ago, if the U.S. resumes nuclear weapons testing, Russia has every right to do the same. Yes, indeed. This is a serious matter. Let's listen to our colleagues. The floor goes to the Minister of Defense. वाज़ेह रहे कि अक्टूबर के आखिर में सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया था कि चूंकि दीगर ममालिक भी जौहरी तजर्बे कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को भी बराबरी की बुनियाद पर अपने तजर्बात दोबारा शुरू करने चाहिए। उन्होंने बाद एक इंटरव्यू में दावा किया कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान भी जौहरी तजर्बे कर रहे हैं। तालिबान हुकाम के मुताबिक उनका आला सतही वफ्द पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंच गया है। कतर और तुर्की की सालसी में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज से शुरू होने का इम्कान है। तालिबान हुकूमत के इज़राए के मुताबिक वफ्द में इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक, नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह नजीब, दोहा में तालिबान के सफ़ीर सुहेल शाहीन, अनस हक्कानी, अब्दुल कहार बल्खी समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंचा है या नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले दूसरे दौर के इख्तिताम पर पाकिस्तान और तालिबान में जंग बंदी के तसलसल पर इतफाक़ किया गया था। तुर्की की वजारत खारजा ने एलामिया में कहा था कि जंग बंदी के नफाज के उसूल व ज़वाबित 6 नवंबर को इस्तांबुल मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। दोनों फरीकैन ने निगरानी और तस्दीक के निज़ाम पर भी इतफाक़ किया है, जिसके तहत किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने अमन के क़याम और शिद्दत पसंदी के खात्मे की यकीन दहानी कराई है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ कार्रवाई और सज़ा का तरीक़ाकार भी तय पाया गया है। ख्याल रहे कि सरहदी झड़पों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक किया था और पहला मरहला कतर में मुनक़द हुआ था। अफगानिस्तान की वजारत खारजा के डायरेक्टर हाफिज ज़िया अहमद ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर खारजा इसाक डार का ये दावा दुरुस्त नहीं कि अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने उन्हें एक दिन में 6 बार फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद बाहमी एहतराम और हक़ाइक़ पर होनी चाहिए और ऐसे बयानात सफारती अदाब के मुनाफी हैं। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अमारात इस्लामिया हमेशा पड़ोसी ममालिक के साथ तामीरी ताल्लुकात की ख़्वाह है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान कलमेगी की तबाहकारियों के नतीजे में 114 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद सदर मार्कोस जूनियर ने पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया है। ये रवां साल फिलिपाइन से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान मुल्क के सबसे गुंजान आबाद जजीरे सीबू में हुआ, जहां 71 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। हुकाम के मुताबिक 127 अफराद लापता और 82 जख्मी हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक मुकामी हुकाम ने मजीद 28 अमवात की इतला दी है, ताहम नेशनल सिविल डिफेंस दफ्तर ने इन्हें सरकारी अदाद-ओ-शुमार में शामिल नहीं किया। सदर मार्कोस जूनियर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को आफत ज़दा करार देने का फैसला न सिर्फ तूफान कलमिगी के नुकसानात के बाइस किया गया है, बल्कि एक और मुमकिन तूफान की पेशगोई के पेश नज़र भी किया गया है, जो हफ्ते के आखिर में फिलिपाइन से टकरा सकता है। Region 6, 7, 8, Mimaropa, umabot sa Negros Island region, kasi dahil tumawid ang Tino and the damage is heavy, and so but we are doing our usual relief and support activities para lahat ng mga na-displaced, lahat ng naging biktima ay matutulungan natin ng pamahalaan. वाज़ेह रहे कि जुमेरात की सुबह तूफान फिलिपाइन से निकलकर वस्ती वियतनाम की जानिब बढ़ गया है, जहां जुमे को इसके टकराने की तवक्को है। सामीन, क्या आप जानते हैं कि सैलाब सिर्फ ज़मीन की सतह पर तबाही नहीं मचाते, बल्कि ज़मीन के नीचे बसने वाली हशरात की दुनिया को भी नेस्तो नाबूद कर देते हैं।
माहिरीन के मुताबिक ज़ेर ज़मीन हयातियाती निज़ाम की ये तबाही माहौल के तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासर करती है, जिसके असरात बिलाखिर इंसानों की ज़िंदगी पर भी पड़ते हैं। मज़ीद तफसील उमर दराज नंगियाना से। सैलाब का पानी जब तबाही मचाता है, बहुत बड़े पैमाने पर घर तबाह होते हैं, फसलें तबाह होती हैं, हम उसे देख सकते हैं, वो नुकसान हम देख सकते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर है, हमें नज़र आ रहा है। लेकिन यही सैलाब का पानी एक और दुनिया के अंदर बहुत तबाही मचाता है, जिसे हम बेखबर होते हैं, नहीं देख सकते। और वो दुनिया है इन इन्वर्टिब्रेट्स की। ये ज़मीन के नीचे होती है। ये इन्वर्टिब्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जैसे कि ये टर्माइट्स। अगर ये ना हो तो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाए, और ये हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये सब कैसे होता है, आइए देखते हैं। टर्माइट्स जो हैं ये इनको हम इकोसिस्टम इंजीनियर भी बोलते हैं। आजकल फॉरेस्ट हैं जो इंसानों ने डेवलप किए हुए हैं, तो वो उनके लीव्स गिरते हैं, उनकी ब्रांचेस टूटती हैं, तो वो सारे के सारे कुछ अरसे बाद आपको नज़र नहीं आते। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स ट्रैप हो जाते हैं इन प्लांट्स में, सेलुलोज में, ये टर्माइट्स उसको रिसाइकल करती है ताकि प्लांट्स जो हैं दोबारा उन न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर कर पाएँ, अपनी ग्रोथ बेहतर कर पाएँ। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ है। इनका सोशल सिस्टम है। नीचे ये कॉलोनीज़ में रहते हैं और उस कॉलोनी में कई मिलियन की इनकी तादाद होती है, और उन्होंने इसमें कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है। इनमें 90% वर्कर्स हैं। ये सिर्फ खुराक ढूंढते और नेस्ट बनाते हैं। ये लड़ने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए इनकी और कॉलोनी की हिफाजत के लिए सोल्जर्स होते हैं। टर्माइट्स की ज़ेरे ज़मीन अफजाइश नस्ल की इब्तदा ज़मीन के ऊपर होती है, जब इनकी मुस्तकबिल की मलका के पर गिरते हैं। बारिश के बाद हम देखते हैं जो बाहर पितंगे निकलते हैं, वो एक्चुअली इसके किंग और क्वीन होते हैं। वो फ्यूचर किंग और क्वीन होते हैं, कॉलोनी के फाउंडर्स होते हैं। उनके पर गिर जाते हैं और फिर वो पेयर बना लेते हैं। फीमेल आगे आगे चलती है, मेल पीछे पीछे। तो ये फिर अपना ज़मीन के अंदर चले जाते हैं इसी तरह पेयर। फिर ये वहाँ पे अपना रॉयल चैम्बर बनाते हैं, और फिर क्वीन जो है वो मेटिंग करके एग लेइंग शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता जो क्वीन का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है साथ साथ, और वो एग लेइंग मशीन हो जाती है। वो एक दिन में बाज़ स्पीशीज़ में 30 से 40,000 से 60,000 तक भी अंडे दे सकती हैं। दीमक ज़ेरे ज़मीन अकेली नहीं, इसके साथ ही चींटियाँ भी कॉलोनी बनाकर रहती हैं। दोनों की आपस में नहीं बनती, आमना सामना हो जाए तो लड़ाई हो जाती है। इसमें ज़्यादातर चींटियाँ जीत जाती हैं, लेकिन चींटियाँ भी ज़मीन की ज़रखेज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। एंट्स में कोई एक सेपरेट कास्ट नहीं होती सोल्जर की। वो जितने के जितने वर्कर हैं वो सारे के सारे सोल्जर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। इनके टर्माइट्स के जो हैं वो सिर्फ 4 to 5% होते हैं, तो उनकी तादाद ज़्यादा है। अब इसी तरह एंट्स की जो सक्सेसफुल, वो भी इसी तरह के, वो भी कॉलोनीज़ में रहते हैं। उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं नेचर के अंदर। एक तो जिस जगह पे इनकी कॉलोनी होगी वहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। टर्माइट्स तो थे वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज के ऊपर फीड करते हैं। ये वाले ओमनीवोर हैं एंट्स। ये अगर कोई एनिमल, जैसे एनिमल की डेथ हो जाती है, उसमें से खुराक लेके जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह प्लांट मैटर को भी ये नीचे लेके चले जाते हैं, उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ती है। दूसरा एक और काम करती हैं कि ये सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो ये उठा के लेके जाती हैं, दूसरी जगह पे जाके फेंकती हैं। सीड का डिस्पर्सल का ये काम करती हैं मेन जो है, उससे एक नेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी कायम रहती है। किसी भी इन्वायरमेंट का जो अंदाज़ा है वो उसके अगर हमने देखनी हो कि भाई वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना यानी कि बैलेंस है, वहाँ पे हम एंट्स की पॉपुलेशन को देखते हैं, एंट्स की डाइवर्सिटी को देखते हैं। जितनी ज़्यादा एंट्स की डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा वो वाला इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। आप इन्हें देख सकते हैं, चींटियाँ बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत ही नहीं, कुछ तो बहुत ही स्मार्ट भी होती हैं। छोटी एंट्स होती हैं, ये अमूमन ये करती हैं कि वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकती। ये दूसरी बड़ी एंट के एग्स को ला के अपनी कॉलोनी में रख लेती हैं। फिर वो जब उसमें अडल्ट वो बनता है, वो वर्कर बनता है, वो बड़ा होता है, वो मोर पावरफुल होता है, वो समझता है मैं इसी कॉलोनी का हूँ, तो वो उनके लिए स्लेव के तौर पे काम करता है।
ماحولیاتی نظام کا یہ ایک اور بہت ہی اہم ممبر ہے، سولیٹری بیز۔ ہماری جان پہچان زیادہ تر صرف شہد کی مکھیوں سے ہے، لیکن یہ تو صرف 20% کے قریب ہیں۔ ورلڈ میں تقریباً 20,000 اسپیشیز بیز کی جو ہیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اس میں سے لیکن 80% کے قریب جو ہیں وہ سلیٹری بیز ہیں، جو اپنا نیسٹ یا تو زمین کے اندر بناتی ہیں یا کچی دیواروں میں بناتی ہیں یا ٹریز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے نیسٹ بناتی ہیں۔ یہ ہول ہے ان کے اندر جا کے وہ اپنا ایسے کرتی ہے کہ اپنا ایگ لیئنگ کرے گی اور اس کو نا سیل کر دے گی آگے، پھر جو ہے اپنا پھر ایگ لیئنگ کرے گی، سیل کرے، چیمبر بناتی جاتی ہے۔ تو وہ چیمبر اس طرح سے بناتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ پہلے والا نکلے گا، پھر اگلے والا، تاکہ کوئی چیز ڈسٹرب نہ ہو، یعنی کہ اس کو اتنا ہوتا ہے کہ بھئی میری جو نیکسٹ جنریشن آنی ہے وہ پریزرو رہے اور وہ جو ہے نا اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرے۔ ہماری مور دین 70% آف دی کراپس جو ہیں، جو فلاورنگ کراپس ہیں، وہ پولینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور ان کی پولینیشن یہ بیز کرتی ہیں۔ 30% جتنا ہم کچھ کھا رہے ہیں، 30% فوڈ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بیز کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے۔ الفالفا یا لوسن ایک ایسی فصل ہے جس میں لائیو اسٹاک کے لیے سب سے زیادہ غذائیت موجود ہے۔ اس کا بیج بنانے میں سولیٹری بیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسپیشل میکانزم ہے اس کی پولینیشن میں، جب تک کوئی اس کو ٹرپنگ نہیں کرے گا تو وہ پولینیشن کر کے اس سے سیڈ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو سولیٹری بیز ہوتی ہیں جو گراؤنڈ میں زیادہ تر اپنے نیسٹ بناتی ہیں، یہ بڑے ہی اس کے اچھے پولینیٹر ہیں۔ تو جیسے ہی پھر اس کا فلاور آتا ہے تو یہ اس کو وزٹ کرتی ہیں اور اس کو فلاور کو ٹرپنگ کر کے اور اس میں پھر وہ اس کی پولینیشن ہوتی ہے، پھر اس سے سیڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ ماحولیاتی نظام میں توازن ان جیسے حشرات سے ہی قائم ہے۔ یہ نہ ہوں تو انسان کے لیے خوراک پیدا کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ بہت زیادہ ایسے ہیں جو یہ اینٹس ہیں جو ایک بایولوجیکل کنٹرول ایجنٹس کے بھی طور پہ کام کرتی ہیں۔ یہ مختلف جو پیسٹ ہوتے ہیں، ان کے کیڑے مکوڑے، ان کے انڈوں کو، ان کے چھوٹے بچوں کو، ان کو کھاتی ہیں، ان کی خوراک ہیں یہ۔ تو جب یہ موجود نہیں ہوں گی تو وہ پیسٹ کا اٹیک بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، ہماری پیداوار بھی کم ہوگی۔ ورلڈ میں اسٹڈیز بہت سارے سائنٹسٹ نے کی ہیں کہ ٹرمائٹس اور اینٹس کی وجہ سے تقریباً 40% تک ویٹ کی ییلڈ انکریز ہوتی ہے۔ ٹرمائٹ کے گٹ کے اندر ایسے نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ایٹماسفیئر کے اندر سے نائٹروجن کو کیپچر کر کے زمین میں پلانٹس کے لیے اویلیبل کرتے ہیں۔ ان کی موومنٹ سے سائل جب پورس ہوتی ہے تو جو ایروین ہے، جو سائل ایروین ہے، وہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ پانی پینیٹریٹ کرتا ہے۔ سائل پورس ہوتی ہے تو جو پودے کی جڑیں ہیں وہ بھی کافی نیچے تک ان کو جانے میں یعنی کہ وہ چلی جاتی ہیں اور اپنی نیوٹریشن صحیح طریقے سے حاصل کرتی ہیں۔ تو جب یہ نہیں ہوں گی تو زمین کمپیکٹ ہو جائے گی، زمین سخت ہو جائے گی، اس میں ایگریکلچر کرنا جو ہے وہ ایز سچ نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا، ان کی موجودگی میں تھا۔ سیلاب اس ماحولیاتی نظام کا یہ توازن بگاڑ دیتا ہے۔ جہاں پانی آئے یا کچھ دن رک جائے، وہاں ان حشرات کی کالونیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں پلنے والی ان کی اگلی نسل بھی مٹ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیلاب کے پانی سے انہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں اس کے لیے سیلابی علاقوں میں ان کے لیے محفوظ مقامات بنانے پڑیں گے، اور ان مقامات کا تعین سیلاب سے حفاظت کے لیے بنائے جانے والی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی حملوں کو 80 سال گزر چکے ہیں، جس کے بعد دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوا تھا۔ بی بی سی نے اس ہولناک واقعے میں زندہ بچ جانے والے افراد کی آخری نسل سے گفتگو کی ہے۔ وہ اس وقت معصوم بچے تھے، مگر اس تباہی کے ذہنی اور جسمانی اثرات آج بھی ان کی زندگیوں کا حصہ ہیں۔ اس رپورٹ میں ایٹم بم پھٹنے کے بعد کے اثرات کی تفصیلات اور تصاویر شامل ہیں جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ 6 اگست 1945 کی صبح 8:15 پر امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا۔ 3 دن بعد اس نے دوسرا بم ناگاساکی پر گرایا۔ یہ تاریخ میں واحد موقع ہے جب کسی جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ہیروشیما جہنم کی سرزمین تھی، انسانوں کا بنایا ہوا جہنم۔
اب جب دنیا بھر میں تنازعات جاری ہیں تو ایٹمی ہتھیاروں کی نئی دوڑ اور اس کے بڑھتے ہوئے خطرات پر بات مزید شدت اختیار کر رہی ہے. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси. ہیروشیما میں جوہری ہتھیاروں سے ہونے والی تباہی صرف ماضی کی بات نہیں ہے. دوسری عالمی جنگ میں شامل ہونے کے ایک سال بعد 7 دسمبر 1941 کو جاپانی ایئر فورس نے ہوائی کے پرل ہاربر میں ایک امریکی بحری اڈے پر اچانک حملہ کیا جس میں 2400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے. اس حملے کے بعد امریکہ نے نیو میکسیکو میں ایک خفیہ منصوبے پر کام شروع کیا جس میں نیوکلیئر فیژن کے ذریعے دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار کیا گیا. جب جاپان نے جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنگ ختم کرنے کے امریکی الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا تو امریکہ نے ہیروشیما پر ایک تجرباتی بم گرایا. تھوڑی دیر پہلے ایک امریکی طیارے نے ہیروشیما پر ایک بم گرایا اور دشمن کے لیے اس شہر کی افادیت کو ختم کر دیا. اس بم میں 20,000 ٹن TNT سے زیادہ طاقت ہے. یہ ایک ایٹم بم ہے. ہیروشیما کے تقریباً 3,50,000 رہائشیوں میں سے تقریباً 78,000 فوری طور پر ہلاک ہو گئے. 3 دن بعد امریکہ نے ناگاساکی پر دوسرا بم گرایا. ناگاساکی کے تقریباً 2,40,000 شہریوں میں سے 40,000 فوری طور پر ہلاک ہو گئے. اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے جس سے ایشیا میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا. میں کئی سالوں سے ان جوہری خطرات پر رپورٹنگ کر رہا ہوں لیکن ہیروشیما پر بمباری کی سالگرہ پر اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ایٹمی جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کا جائزہ لیا جائے. اور اس مقصد کے لیے میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں جانے کی مجھے توقع نہیں تھی. یہ سب کچھ بہت دور لگتا ہے. وہ بم 80 سال پہلے 9,000 میل دور گرایا گیا لیکن اس کے اثرات آج بھی برطانیہ میں محسوس کیے جا سکتے ہیں. اور میں ویلز کے شہر سوانزی آیا ہوں تاکہ ایک ایسی شخصیت سے مل سکوں جنہوں نے اس سب کو جھیلا ہے. کیوکو گبسن ہیروشیما میں بم گرنے کے 3 سال بعد پیدا ہوئی. آج بھی آپ کی زندگی پر اس واقعے کے اثرات ہیں. کیا آپ ہمیں کچھ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ میں بچپن میں جسمانی طور پر کمزور تھی. مجھے فالج ہوا. میرے جسم میں ٹیومر تھا اور حال ہی میں میری 2 بریسٹ کینسر کی سرجریاں ہوئی ہیں. آپ کے خاندان کے بارے میں آپ نے اپنے شوہر سے بات کی؟ کیا وہ اس سب کچھ پر حیران تھے کہ آپ اور آپ کے والدین کن حالات سے گزرے ہیں؟ میرا خیال ہے ہاں، لیکن میرے بچوں نے کبھی اس بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا. شاید انہیں پوچھنے میں ہچکچاہٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ بات اتنی تکلیف دہ ہے. 8 دہائیاں گزر جانے کے باوجود ایٹمی جنگ کا خوف آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اخباروں کی سرخیوں میں، ٹی وی شوز، فلموں اور ویڈیو گیمز میں. لیکن ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا تھا. یہاں ہیروشیما میں مجھے ان چند لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے جنہوں نے حقیقت میں ایٹم بم حملے کا سامنا کیا ہے. آج کی دنیا میں جہاں ایٹمی جنگ کا خطرہ کم نہیں بلکہ قریب تر محسوس ہوتا ہے، ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں میں رہ رہا تھا جب بم گرایا گیا. ہیروشیما جاپان کی جنگی کوششوں کا اہم مرکز تھا. کیکو اس وقت 8 سال کی تھی. میکیو 13 سال کے اور کینجی 6 سال کے. یہ ایٹمی حملے سے بچ جانے والوں کی آخری نسل میں شامل ہیں. کیا یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ تھے؟ مجھے یقین نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میں ہوں. یہ شخص اب بھی ٹوکیو میں زندہ ہے.
लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग अब नहीं रहे। Previous night, that there were warning. पिछली रात एक वार्निंग आई थी और हम कई बार शेल्टर की तरफ दौड़े। इस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि आज कुछ हो सकता है और तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। Because of that, you shouldn't go to school. सुबह 8 बजे के फौरन बाद B-29 तैयारे अनोला गे की आवाज हिरोशिमा की फजाओं में सुनी गई। हिरोशिमा पर बम गिराने का फैसला सिर्फ 1 घंटे पहले किया गया था। इसका हदफ था ओई ब्रिज, जो शहर के बिल्कुल मरकज में वाक़ है। ठीक 8:15 पर एटमी बम, जिसे लिटिल बॉय कहा जाता था, गिरा दिया गया। I was alone on the road. मैं सड़क पर अकेली थी, बिल्कुल अकेली। फिर मैंने वो चमक महसूस की। जो कुछ मैं देख रही थी वो सब सफेद हो गया। ये धमाके की लहर, ये 2 मंजिला ऊंची लहर कोने से मेरी तरफ आई। एक लम्हे में ही घर ज़मीं बोस हो गया और गर्दो गुबार ने हर चीज को मुकम्मल तारीकी में बदल दिया। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। ये नाकाबिले यकीन था। हम हैरत ज़दा रहे थे। शहर की तकरीबन 1/4 आबादी मौके पर ही हलाक हो गई। उनमें से बहुत से बच्चे स्कूल जाने वाले थे। आप सिर्फ 13 साल के थे जब आप अपने घर के मलबे से बाहर निकले। तो क्या आपको अंदाजा हुआ कि क्या हो चुका है? आप ये नहीं बता सकते कि वो मर्द थे या औरत। उनके चेहरे इस कदर मस्क हो चुके थे। गर्मी ने उनके बालों को सुकेड़ कर सीधा कर दिया था। जब बच जाने वाले ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ और उनके खानदानों के साथ क्या हुआ, तो बज़ाहिर सेहतमंद लोग अचानक मरने लगे। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है। बमबारी के फौरन बाद लोग जब कंघी करते तो उनके बाल झड़ने लगते। बम से बच जाना सिर्फ शुरुआत थी। इस धमाके ने ताबकारी शुआओं की बहुत बड़ी मिक़दार खारिज की, जिससे लोग अगले दिनों और हफ्तों में शदीद बीमार हो गए। अगर आपके बाल झड़ने लगते तो आप 4 या 5 दिन के अंदर मर जाते। मुझे याद है कि हर सुबह जब मैं जागता तो मैं यूं अपने बाल खींचता, और अगर बाल झड़ जाते तो मैं बहुत परेशान हो जाता। जापान अगले 7 साल तक अमेरिका के कब्जे में रहा। अमेरिकी हुक्काम ने हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले असरात की खबरों पर सख्त सेंसरशिप आयद की। अगरचे अमेरिका ने बमबारी के तिबी असरात का मुताला करने के लिए एक कमीशन कायम किया था, लेकिन दुनिया को जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत और तौलेदी अमल पर पड़ने वाले असरात को समझने में दिहाइयां लग गई। एटमी हमलों के बारे में लाइल्मी आज भी मौजूद है। अभी तक इस बारे में कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं कि उन हमलों के नतीजे में कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन बच जाने वाले अफराद समझते हैं कि उनमें कैंसर की बुलंद शरह इन बमों का नतीजा थी। वो लोग भी जो धमाके के वक्त वहां मौजूद नहीं थे, जैसे सातोशी तानाका। मैं अब तक 6 कैंसर की सर्जरियों से गुजर चुका हूं और बार बार अस्पताल आना जाना रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। सातोशी 6 अगस्त को धमाके के वक्त शहर में नहीं था, लेकिन बाद में ताबकारी शुआओं की जद में आ गए। वो सिर्फ 18 माह के थे जब उनकी माँ अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में उन्हें भी अपने साथ शहर ले आईं। क्या आप ऐसे समझते हैं कि इसकी वजह से आपकी सेहत पर असर हुआ है? मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें बचपन में कम सतह की ताबकारी का सामना हुआ, ऐसा डेटा मौजूद है जो जाहिर करता है कि जब वो बड़े होते हैं तो इन पर इसके असरात जाहिर होते हैं। 2024 में सातोशी और केको उन बच जाने वालों के ग्रुप का हिस्सा थे जिन्हें एटमी हथियारों से पाक दुनिया के लिए की जाने वाली कोशिशों पर नोबेल पीस प्राइज दिया गया, लेकिन वो समझते हैं कि उनका मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आपको अपनी कहानी सुनाने का फैसला क्यों करना पड़ा?
जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। मैंने कहा नहीं, मैं खामोश नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे हर हाल में अपनी कहानी सुनानी है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये हथियार कारआमद हैं और हकीकत में जंग को रोकते हैं। वो यकीन रखते हैं कि कौमें एटमी जंग के मुमकिन असरात से इतनी खौफजदा होंगी कि वो किसी भी जंग से गुरेज करेंगी। जवाबी हमले के तबाहकुन खौफ, जिसे डेटरेंस का नाम दिया जाता है, उसी की वजह से ही जौहरी हथियार आज भी मौजूद हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 12,000 एटमी हथियार मौजूद हैं, जो 9 ममालिक के पास हैं, अगरचे इसराइल ने कभी उनकी मौजूदगी की तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकिन ये हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल होने वाले बमों से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। ये सब खौफनाक है जो कुछ हमें बताया गया है। एक तरफ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार रखने की ख्वाहिश है ताकि ये सब आपके साथ ना हो, और दूसरी तरफ वो सब कुछ जो हुआ और नहीं चाहेंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो। केंजी और सातोशी हिरोशिमा पीस पार्क के करीब एक दूसरे से मिले हैं। ये यादगार उन लोगों की याद में बनाई गई है जिनकी लाशें कभी नहीं मिल सकी। सातोशी की खाला भी उनमें शामिल थी। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। मुतासरीन में से तकरीबन निस्फ की शनाख्त नहीं हो सकी। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तकरीबन 70,000 अफराद ऐसे थे जिन्हें कोई लेने नहीं आया। चलो दुआ करते हैं। बाकी दुनिया खुश नसीब है क्योंकि यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी ही वो जगह हैं जिन्होंने एटमी हमले का सामना किया। अब तक डेटरेंस यानी जवाबी हमले के खौफ और समझौते ने हमें बचा रखा है, लेकिन जो लोग इस तबाही से जिंदा बचे उनकी सबसे बड़ी फिक्र ये है कि सियासी रहनुमा, जर्नैल और वो लोग जो एटमी हथियारों के फैसले करते हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे और जो कुछ उनके साथ हुआ उसे महसूस नहीं कर रहे। वो जौहरी हथियारों और यहाँ हिरोशिमा में जो कुछ हुआ उसके दरमियान ताल्लुक नहीं जोड़ पा रहे, और जब वो आखिरी लोग जो वाकई जानते हैं कि एक एटमी बम क्या होता है, जब वो सब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हम अपने रहनुमाओं को कैसे समझाएंगे कि जौहरी हथियार का बटन दबाना दरअसल क्या मतलब रखता है। सामीन, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में क्रिकेट के अंदाज़े खेल में ऐसी तब्दीली आई है कि जो डॉट बॉल कभी महारत और मज़ामत की अलामत समझी जाती थी, अब वो जदीद क्रिकेट में बोझ बन चुकी है। ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट में, जहां इनिंग्स सिर्फ 120 गेंदों पर मुश्तमिल होती है। हर गेंद पर रन्स बनाना बल्लेबाज के लिए लाजिम समझा जाने लगा है। पाकिस्तानी टीम पिछले कुछ अरसे से डॉट बॉल के तनासब में सर फहरिस्त दिखाई देती है, जिसने इसकी मजमूई बैटिंग कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज अक्सर इस चक्कर में फंस जाते हैं कि हर गेंद को बाउंड्री पार भेजना जरूरी है, जिसके नतीजे में स्ट्राइक रोटेशन यानी सिंगल और डबल लेने की सलाहियत मांद पड़ जाती है। ये रुझान सिर्फ बल्लेबाजों की तकनीकी कमजोरी नहीं बल्कि टीम की मजमूई अप्रोच का अक्कास है, जहां महारत की बजाय स्टाइल को तरजीह दी जा रही है। कभी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग साझेदारी टीम की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी, मगर अब उन्हीं के स्ट्राइक रेट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि जब बैटिंग फलसफा सिर्फ छक्कों पर मरकूज हो तो बल्लेबाज खेल की बुनियादों से दूर हो जाता है। ऐसे में बाउलर्स को भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें विकेट हासिल करने के लिए सिर्फ बल्लेबाज के हिटिंग आर्क से बाहर गेंद फेंकनी होती है। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो छक्कों की ख्वाहिश और डॉट बॉल के खौफ के दरमियान एक मुतवाज़िन रास्ता तलाश करे, जहां महारत, स्ट्राइक रोटेशन और हिकमत अमली महज ताकत पर गालिब आ सकें। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।
मैक्सिको की सदर क्लाडिया शैम्बाम को नेशनल पैलेस के करीब एक अवामी मुकाम पर हरासानी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स पीछे से आकर सदर क्लाडिया की गर्दन पर बोसा देने और जिस्म को छूने की कोशिश करता है। वाकये के फौरन बाद सदर फौरन पीछे हट जाती हैं, जबकि उनकी सिक्योरिटी टीम मुदाखलत करती है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बुध के रोज न्यूज कॉन्फ्रेंस में सदर क्लाडिया ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी खवातीन के साथ क्या होगा। Vivo este episodio de acoso, realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí. उन्होंने मजीद कहा कि वो इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी ताकि मुल्क में खवातीन के लिए एक वाज़ेह मिसाल कायम की जा सके। क्लाडिया ने एतराफ़ किया कि बतौर तालिबा उन्हें पहले भी ऐसे तजुर्बात का सामना रहा है, ताहम अब बतौर सदर वो इस रवैये के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को ज़रूरी समझती हैं। खवातीन के हकूक़ के कारकुनों के मुताबिक ये वाक़या मैक्सिको के पदरशाही माशरे की अक्कासी करता है, जहाँ खवातीन इवन आला ओहदे पर फाइज होने के बावजूद महफूज नहीं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैक्सिको में जिन्स की बुनियाद पर कत्ल के 98% वाक़यात में मुजरिम सज़ा से बच जाते हैं। अगरचे सदर ने अपनी मुहिम के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का वादा किया था, ताहम अब तक इस शोबे में खातिर खा बेहतरी नहीं आई है। वाक़ये के बाद सदर की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, मगर क्लाडिया ने वाज़ेह किया है कि वो अपने हामियों से करीबी राब्ता रखने की पॉलिसी बरकरार रखेंगी। सच वो नहीं जो सब दिखाते हैं, सच वो है जो ZBC सैरबीन दिखाता है। मुल्क भर में TLP के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, बस सारा ड्राइवर लोग जो है ना गाड़ी के नीचे छुपा थे। ये कहानी लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक गोदाम में एक डब्बे से शुरू हुई। But like I'm not here to say, you know, I want to defend myself or I have done. पिछले 10 सालों से ZigZag न्यूज़ वो कहानियां सामने लाया जो आम मीडिया छुपाता रहा। पाकिस्तान के ये इंतहाई दौलतमंद खानदान कौन से थे, दौलत कितनी थी उनके पास। अब हम लेकर आए हैं ZigZag न्यूज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 500 रुपए माहाना में आपको मिलेगा खुसूसी मवाद, गहरे तज्जिए और वो हकीकतें जो आम नाजरीन नहीं देख सकते। बस फीस भेजें जैज़ कैश या बैंक अकाउंट पर, स्क्रीनशॉट शेयर करें और हम आपको भेजेंगे प्राइवेट वीडियो लिंक। ZigZag न्यूज़, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती है।